So, good afternoon students. I am Professor P.B. Ingde and today we have to discuss the lecture number 39. Okay. On which topic? The topic name is the numerical of a rotational dynamics, and this is a chapter number 1 in a 12th class of a physics of Maharashtra boards. Okay, so let's we discuss this problem. See here. So what is the problem, boys and girls? See, a part of a racing track is to be designed for a curvature of 72 meters. मतलब बच्चों यहाँ पे एक कर्वेचर ट्रैक दिया है जिसकी रेडियस कितनी है 72 मीटर्स. मीन्स व्हाट इज वी हैव वन कर्वेचर ट्रैक विल बी गिवन लाइक दैट. वन कर्वेचर ट्रैक, सपोज दिस इज द सेंटर. So from this center, how much this distance given? R is equal to 72 meters. Okay, this is our tracks, curvature track. उसके बाद में देखिए बच्चों, we are not recommending the vehicle to drive faster than 216 किलोमीटर पर आवर्स. मीन्स कितनी स्पीड दी है 216. इसके ऊपर की स्पीड ये रोड के लिए सुटेबल नहीं है. मीन्स वी आर नॉट रिकमेंडिंग टू ड्राइव योर व्हीकल्स मोर देन 216 किलोमीटर पर आवर. इससे ज़्यादा की स्पीड से अगर चलाएंगे तो देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एक्सीडेंटल स्किडिंग और द व्हीकल इज़ अनकंट्रोल्ड सिचुएशंस. तो फिर क्या स्पीड है 216, इससे ज़्यादा नहीं, इससे लेस 100 200 लाइक दैट. ओके, मीन्स इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द प्रॉब्लम वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर्स. मतलब स्पीड दी है यहाँ पे बच्चों अपने को, हाउ मच इट इज़ 216 किलोमीटर पर आवर्स. सो सी हियर द डाटा इज गिवन, रेडियस 72 meters, देन स्पीड इज हाउ मच 216 kilometer per hours. So convert into meter per seconds, how much? 21 kilometer is 10 to the power 3 and meter hour with second is how much? 3600. So after solving this, you solve all this mathematics. After solving, what is your answer? Simple mathematics you do there. Okay, what is the answer? The V is 60 meter per second. So what is the velocity? 60 मीटर पर सेकंड. मतलब एक सेकंड में या ये रोड पे वेलोसिटी कितनी रहेंगी 60 मीटर. मतलब एक सेकंड में जो व्हीकल है वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगी बच्चों 6 मीटर. ओके, आगे देखिए. विथ व्हाट एंगल शुड बी टिल्टेड बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज if the track is 10 meter wide. So see here, I draw the one more diagram. Suppose this is the horizontal surface, this is our outer edge and this is the angle theta. So we determine this angle theta. Okay, what angle should be tilted by what height with its outer edge. अब ये जो है बच्चों, ये है outer edge और ये है इनर एज किसकी? रोड की. दिस इज द इनर एज ऑफ रोड एंड दिस इज व्हाट इज आउटर एज ऑफ अ रोड, आउटर एज. अब यहाँ से ये कितने हाइट पे है ये भी कैलकुलेशन स्टूडेंट हमको निकालना है. राइट? यस. इफ द ट्रैक, अब ये जो ट्रैक दिया है ये डिस्टेंस कितना है 10 मीटर. मतलब ट्रैक जो है वो कितना वाइड है, ये है 10 मीटर का. ओके, सो लेट्स वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सी हियर, वी नो द रेडियस, वी कैलकुलेट द वेलोसिटी, वी नो द वाइड ऑफ द रोड्स, वी डिटरमाइन दिस थीटा एंगल, दिस बैंकिंग ऑफ रोड एंड एच. ओके, सो सी हियर solutions.
So what is the optimum speed formula? We have the tan theta is equal to what is v square upon rg. We know these equations. Okay. So with the help of this we calculate the value of the theta. So what is here? Theta is equal to what is tan inverse v square upon rg. Just put the values. Tan inverse, what is the v square? It is 60, means 60 square upon rg. What is the value of the r? 72. G is how much? It is given in the problem. G is mentioned is how much? It is 10 meter per second square. It is given in the numericals everywhere. So 10. So you solve this. Theta tan inverse 60 means what is? It is 360 multiplied by 72 into 10, right? Yes. So do these calculations. What is the this cancel? Okay. You 360 divided by 72. You simple do this calculation in your laptop also. So what is we get? We get here tan inverse. What is 5. So what is the angle theta? After you see the log tables, we have these log tables. ये लॉग टेबल में बच्चों जाके tan का जो टेबल है, you see the tables of the tan. Okay. जो इसके अंदर जो tan का जो टेबल दिया आपको, ये tan के टेबल में जाके ये tan इनवर्स 5 की वैल्यू आपको निकालना है. तो वो वैल्यू आ जाएंगी मेरे पास में. हाउ मच? इट इज 78 डिग्री 41 मिनट्स. मतलब ये जो एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड दिया ये कितना निकल गया? 78 डिग्री 41 मिनट्स. इट इज़ अ ह्यूज बैंक ऑफ द रोड इज गिवन. ओके, इन दैट प्रॉब्लम व्हेनेवर वी सॉल्व द सॉल्यूशंस. ओके. अब देखिए बच्चों, दूसरा कैलकुलेशन उन्होंने क्या पूछा है? ये पहला हो गया कैलकुलेशन. सेकंड क्या पूछा है? ये हाइट कितनी रहेगी जब ये रोड ये एंगल से बैंक है और उस टाइम पे ये कंडीशन दी है रोड की कितनी वाइड है. अब मुझे बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी इजी. व्हाट इज बाय द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा. क्या डेफिनेशन आएंगी? समझो इसको मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ ए बी और सी. सो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी क्या लिख पाएंगे अपन? साइन थीटा अपोजिट साइड मीन्स व्हाट इज बी सी अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स व्हाट इज ए बी, राइट? So what is we calculate the value of this? What is BC? So BC means H sin theta. Theta is replaced by what is 78 degree 41 minutes into AB. AB is how much? 10, right? So H is equal to, तो बच्चों ये जो 78 डिग्री 41 मिनट्स है ये भी तुम साइन का जो लॉग टेबल है उसमें जाके देखिए. नेचुरल टेंजेंट्स अनदर इज अ नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस का जो लिखा है टेबल, हाँ नेचुरल साइंस, उसमें कितना है? 78 डिग्री 41 मिनट्स. 78 डिग्री 41 मिनट्स टेबल यू डिटरमाइन व्हाट इज देयर. देयर इज अ 9806. वी गेटिंग द वैल्यूज देयर. 0.9806 multiplied by 10. So after multiply by what is you get 9806 मीटर. बराबर है. मतलब ये जो रोड की हाइट है बच्चों यहाँ से ये इनर एज से और आउटर एज के लिए कितनी दी है स्टूडेंट्स? H इज इक्वल टू 9806, राइट? सो इट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम. देयर इज नो एनी डिफिकल्टी इन दैट प्रॉब्लम्स. सो we calculate here what is, we calculate the H, we calculate the theta. अब बच्चों अपने महाराष्ट्र बुक में एक और प्रॉब्लम दिया है 15 नंबर का. अब इधर देखिए उसको सॉल्व करते हैं अपन. 15 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो किस पे डिपेंड है? ये प्रॉब्लम नंबर 14 पे ही डिपेंड है. इसको देखिए क्या दिया है. इसको मैं मिटा देता हूँ अभी. सी हियर फास्ट.
अब ये जो 15 नंबर का प्रॉब्लम दिया है उसमें देखिए क्या कंडीशन है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड इज 0.8. ओके, आई विल बी कंटिन्यूड विथ दिस प्रॉब्लम. व्हाट इज गिवन हियर, द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शंस, वो प्रॉब्लम दिया है. मैं प्रॉब्लम इसके साथ में कंटिन्यू करता हूँ, फिर उसको अपन आगे रीड करते हैं. ओके, सो लेट्स सी हियर. तो देखिए बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 15. ओके, प्रॉब्लम नंबर 15 जो ये प्रॉब्लम नंबर 14 के साथ में कंबाइन दिया है, अनसॉल्व प्रॉब्लम ऑफ महाराष्ट्र बुक्स. अब यहाँ पे देखिए, सी हियर, द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ अ व्हीकल्स एंड द रोड इज देयर. व्हाट इज, so once again I write down all the given data. What is the radius? The radius is 72 meters. Okay, then what is the speed? The speed is 216 kilometer per hour. Convert into what is 216 multiplied by 10 to the power 3 divided by 360. What is the speed we are getting here? 60 meter per seconds, right? So see here boys, we already learned this previous problem. This is the new thing which is given in the problem for a 15 number problem. The coefficient of a static friction between the tires of a vehicle and the road. Suppose this is our curvature roads. Okay, and on this curvature road there is a vehicles. This is our vehicles. Okay, these vehicles and this road having the friction. What is this friction? The friction is given, mu is given. What is the value of the mu as means coefficient of friction? It is 0.8. In between this wheel and the road, this is 0.8. Then mention, will there be any lower speed limit? वहाँ पे कुछ लोअर स्पीड लिमिट है क्या? फिर उन्होंने पूछा है बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन द केस. मतलब लोअर स्पीड लिमिट कितनी होंगी तुम्हारे व्हीकल की, ये सवाल है. दूसरा सवाल है बच्चों की, अपर लिमिट स्पीड अपन एक्सीड कर सकते हैं क्या, मतलब किससे ज़्यादा 60 मीटर से भी एक्सीड कर सकते हैं क्या, ये भी सवाल वो प्रॉब्लम में पूछा है. तो अभी देखिए, पहला सवाल अपन सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे. फॉर अ लोअर स्पीड लिमिट, फर्स्ट केस वन फॉर a lower speed limit, मतलब कम से कम स्पीड कितनी होंगी ये कर्वेचर रोड पे ये व्हीकल की. ओके, सो लेट्स सी हियर. सो इन banking of road derivation, we already solved the banking of road derivation. You watch my previous videos. तो वहाँ पे बच्चों मैंने दो केस के लिए डेरिवेशन बनाया था. एक बनाया था मैंने मिनिमम के लिए और दूसरा बनाया था मैक्सिमम के लिए. तो क्या डेरिवेशन है वी मिनिमम का, बताइए मुझे. व्हाट इज द फार्मूला फॉर दिस वी मिनिमम? द वी मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट इज अंडर रूट, यस, व्हाट इज RG ब्रैकेट tan थीटा माइनस व्हाट इज म्यू, यस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपॉन what is 1 plus mu s tan theta, right? So we have this standard formula. We already proved this all derivations. So let's we determine the value of the V minimum here. To see, so V minimum is equal to, what is the value of the R? The R is 72. G is how much? 10 multiplied by tan theta. We know that we previously solved. What is the value of this? It is 78 degree 41 minutes minus mu s. What is the mu s is given? It is 0.8 is given. So, okay, divided by 1 plus 0.8 into tan 78 degree 41 minutes. ये बच्चों पहले अपने थीटा बनाया, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी.
अब देखिए V मिनिमम ये कितना हो जाएगा 720, tan ये वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 0.8 अपॉन 1 प्लस 0.8 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज 5, क्योंकि इसका जो आंसर है बच्चों ये कितना आता है 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल मैथमेटिक्स एंड यू कैन इजीली सॉल्व। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस मैथमेटिक्स व्हाट इज द V मिनिमम, वी गेटिंग द V मिनिमम वैल्यूज व्हाट इज 24.60 मीटर पर सेकंड्स, दिस आंसर। मतलब मिनिमम स्पीड जो है ये कर्वेचर रोड पे बच्चों कितने रहने वाली है 24.60 मीटर पर सेकंड। ये मिनिमम स्पीड अपन चला सकते हैं आराम से, किस पे, ये कर्वेचर रोड पे। अब दूसरा सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे पूछा है हाउ मच द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। मतलब 60 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा के स्पीड में अपन यहाँ पे व्हीकल ड्राइव कर सकते हैं क्या। मीन्स देर इज एनी स्पीड एक्सीड, मीन्स वी कैन इंक्रीज द स्पीड, यस और नो। नो, व्हाई व्हाट इज द आंसर, क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि थीटा जो है यहाँ पे बच्चों, ये थीटा, ये जो मैंने अभी बनाया यहाँ पे, ये जो थीटा है बच्चों ये कितना है 78 डिग्री 41 मिनट्स। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेरिवेशन में, अगर थीटा अगर ग्रेटर देन होगा 45 डिग्री से तो अपर स्पीड लिमिट पॉसिबल है क्या। अपर स्पीड लिमिट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, जब थीटा कितना है 45 डिग्री से बड़ा है। तो यहाँ पे थीटा कितना है बच्चों, ऑलरेडी इट इज मोर देन हाउ मच 78.41 डिग्री, ये तो 45 से भी बड़ा दिख रहा। अब 45 डिग्री से भी थीटा बड़ा है, तो कैन पॉसिबल देयर अपर स्पीड लिमिट, नॉट पॉसिबल इन दिस सिचुएशंस। व्हाई, बिकॉज द आंसर बिहाइंड दैट थीटा इज very large. When upper limit speed is possible if the theta is less than 45 degree, in that situation we can increase the speed of the vehicles, we can achieve the upper speed limit. But here the problem, the theta it should be greater than 70, it should be greater than 45 degree. How much it is 78 degree 41 minutes. So therefore no upper speed limit is possible in that conditions. Okay boys and girls, yes. So I think we covered two problems, problem number 14 and problem number 15 boys. आप लोगों को अगर मेरा वीडियोस अगर पसंद आता है तो you can share my videos with your friends, with your teachers, okay. And if you any problems, if you any queries, so just put up your comments in my videos and I will try to give my best answer to you boys and girls. Okay, so stay safe, stay at home and care of you. Okay, so thank you very much.